Started the recording also. Suitable. Okay, Rahul, okay. So here we are going to start with our networking, and there are so many ebook and notes are available on the internet. So here I'm going to refer the two notes. So this is a notes from Delhi University. So you can refer notes of any college or you can any institute, whatever you like. There are so many ebooks of networking. If you want, you can refer. So, but in the end, understanding is most important. If you can understand the concept, then it will be good. It will be fruitful. Otherwise, there is no meaning of studying. So network and network security is a most important topic whenever you are going to prepare for any examination related to IT officer. Okay. So now start. And- Okay. So in that network ये रहा. तो अपने पास जो network होता है. So let's suppose you are having a PC and you are having another PC. Now you want to communicate between two different PCs. Then there is a requirement of network. तो हमें यहाँ पे network की requirement होती है. So in that we are having LAN cables or we can have wireless cables. So data communication between two different electronic device can happen with wired medium or you can say wireless medium. So we are having the LAN here. So I believe in your BTech or in your MCA, you have heard the name of LAN, local area network. यहाँ क्या होता है? So the computers are linked with a cable. So examiner can ask questions related to LAN also. So what are the things we are going to see? Just it is just an overview. Okay, then we are having the WAN. WAN is your wide area network. So let's suppose your city or we can say your specific state or like this. So it is a wide area network or we can say a whole country. So internet we can say also it is a wide area network. Now we are having the MAN. MAN is metropolitan area network. So let's suppose in a specific region you want to set up, so you can do with the setup. So in the WAN we can use the satellite also. ठीक है. तो अभी जैसे अभी आपको यहाँ पे स्टारलिंक है, तो आई बिलीव यू नो अबाउट द स्टारलिंक. तो स्टारलिंक भी अच्छी चीज है. स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्शन, आई बिलीव यू हैव हर्ड दिस आल्सो. स्टारलिंक ये, so this is also a new innovation which provide internet to every corner of India. I'm sorry, world, not India, to world. तो यहाँ पे एक बट इसमें ये है कि इसके जो रहेंगे प्लान्स वो हल्के से एक्सपेंसिव रहेंगे एज कम्पेयर टू अवर लीज लाइन प्लान्स. ओके. So moving ahead, then we are having here our PAN. So it is your personal area network. In that we can use the Bluetooth. तो यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम सर Bluetooth यूज कर सकते हैं. ठीक है. So here we can use the Bluetooth here. Now we are having the intranet. So internet, your can say a private network that you have created. Let's suppose you want to play game. ठीक है. आपको जैसे गेम में होता है खेलना. So in my BTech we like to play the game Counter Strike. Counter Strike. So like this, we like to play the game. So in that, we set up a LAN. We set up a LAN for our multiplayer. So in a specific zone, we try to set up a LAN, and in that we play. So like this, these are the pieces which are connected to a specific switch or specific router. In that, this is your private area network. In that, we are having some IP address. So we assign a IP address to specific users, and they can transfer the data in between. So outside the world, they are no one, they are nothing. But inside this is your private network. So nobody know about it. Okay. So nobody has idea about this. Okay. So this is your, you can say what we say, इंट्रानेट. इंट्रा, देखो एक इंटरनेट होता है एक इंटरनेट होता है. सो स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है. इंटरनेट और इंटरनेट, सो बोथ आर डिफरेंट थिंग. ठीक है. तो ये आपको देखना पड़ेगा. Then in our networking, you have heard the name of servers, you have heard the name of topology, transmission media, your NOS, network adapter, and network navigation devices. कैसे आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? How your data is going to be travel from one place to another place. Okay. Now we are having the servers. So in that we are having the different type of servers. So what are those? We are going to study in detail, but this is only an introduction class. So here we are having application server, email server, web server, database server, printer server, application authentication server. There are an amount of server. Okay. So anyone who want to say what is the difference between a PC and a server?
क्या आपको यहाँ पे बताना चाहता है कि पीसी और सर्वर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हिंदी एंड इंग्लिश, एनीवन वांट टू टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्वर एंड पीसी, क्लाइंट पीसी जो आप यूज करते हो? ओके, सो आई बिलीव यू हैव नो आइडिया. Okay, it is your class. If you want unmute, you can say no problem. She can also be used as a server. Yes, it can be used. हम use कर सकते हैं. If we and it is server is used to handle multiple requests from the client side to increase Yes. the speed. Yes, agree. So in a PC, let's suppose मैं जैसे इंटरनेट से लैपटॉप लेके आता हूँ. So लैपटॉप आप लेके आ गए, ठीक है. लैपटॉप में लेके आ गया, i3 लेके आ गए लैपटॉप, या i5 लैपटॉप लेके आ गए. अब इसमें रहता क्या है, सो यू कैन क्रिएट दिस एज अ सर्वर ऑल्सो, बट इट इज हैविंग द लिमिटेड रैम, लिमिटेड हार्ड ड्राइव, लिमिटेड प्रोसेसिंग स्पीड. सो वी कैन क्रिएट इट बट इट इज नॉट एबल टू हैंडल द मल्टीपल रिक्वेस्ट. अब आप देखोगे यहाँ पे जो इसकी है i5 की प्राइस लगभग आपकी 40 to 50 के अंदर आपको i5 प्रोसेस मिल रहा है, ठीक है. अब यहीं पे अगर सर्वर लेके आते हैं तो वहां पे इंटेल के आई जो सीरीज रहती है वो नहीं रहती, उसमें दूसरी सर्वर रहती है. इंटेल सर्वर प्रोसेसर्स, इसमें आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे जियोन लेके आगे प्रोसेस, तो इनके जो जो सर्वर आएंगे उसमें डिफरेंट चिप यूज होती है, डिफरेंट हार्ड ड्राइव हम ले सकते. हार्ड ड्राइव तो आपकी सेम रहती है बट उसका जो साइज रहता है वो बहुत ज्यादा होता है. जो रैम होती है, रैम इसमें 64 GB हो सकती है. जैसे इंटेल सर्वर रैम लेके आते हैं, रैम का एक रैक होता है, इसमें कंप्लीट रैक होता है, ठीक है. तो लेट सपोज यू आर हैविंग अ रैक हियर, ठीक है. यहाँ पे आपका रैक हो गया, रैक ऑफ हार्ड ड्राइव, रैक ऑफ रैम. सो ये अपने इतने इतने रैक्स हो गए. अब इनमें होगा क्या, सो यू आर गिविंग हेयर, we can say, more speed, more space, more ram, so that it can handle the more request. But what is eventually going to happen, it will increase the cost. जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसको इंक्रीज ये कर देगा. जैसे अब यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव कितने दे रहा है, ये दे रहा है 2 TB की हार्ड ड्राइव दे रहा है, बट देर आर द स्लॉट्स here, so we can add multiple hard drive also. We can add 8 hard drive, we can add 10 hard drive, we can add 14 hard drive, we can add so many RAM. So it is giving you RAM initially of the 32 GB. You can make it 128 GB of RAM. You can expand it. So there are so many slots available in a server. So that's why it is expensive. तो ये जो आपका आता है सर्वर, ये आपका एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है. इसमें भी अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. जैसे आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडोज 7, ऐसे ही विंडोज का भी फॉर द सर्वर वी आर हैविंग द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे आपने देखा होगा विंडो 11 OS आपने देखा होगा, ठीक है. दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाइंट. तो वॉट एवर द लैपटॉप यू आर यूजिंग, इन दैट वी कैन यूज दिस विंडो. अब यहीं पे विंडोज आता है, विंडो सर्वर 2022. So this is a different operating system specifically for the server. Up in the client, what you need, you need more UI part. You want UI should be more interactive, but in the server, what you are looking at, you are looking for the speed, for the process. Okay, so this is the basic difference between client PC and our server. So in later on, we are going to study this more. Okay, then we are these are the servers. Now P2P. अब P2P मतलब क्या होता है, पीयर टू पीयर, फ्रॉम वन प्रोसेस टू, वी कैन से फ्रॉम वन टू अनदर. जब दो लोगों के बीच में हो रही है बात, तो आप यहाँ पे आप कह सकते हो पीयर टू पीयर. तो लेट्स सपोज this node want to interact with this node, so we can create a separate connection from this node to this node. Okay, now in that we can do the distributed also area network, so we can set up our LAN regarding this. So here we are having a different connection with every system. So if let's suppose this device want to send the data by using the wired network, so we can create a peer-to-peer connection here also. Okay, now what is pure P2P? In pure P2P, there is no central server, so there is no one in between who is going to add or who is going to receive your request. So directly two devices can communicate with each other. Okay, what are the advantage of P2P? Efficiency, scalability, reliability, and easy to, you can say, add or easy to remove. Okay, so this is the difference between client server and peer to peer. So this is what we are going to study in detail. अभी जस्ट नाम नाम देखना है, ज्यादा नहीं देखना, ठीक है. अब let's suppose there is you and there is your friend who want to send the data. Okay, now
you are here and your friend is here. Now you want to send the data to your friend. How you can send? So let's understand by a letter. So you are having a letter. So the letter is written and put it in an envelope and dropped into a mailbox. So the letter is dropped into a mailbox. The letter is carried from the mailbox to the post office. आपने एक लेटर लिखा अपने दोस्त को, आपने मेल बॉक्स में डाल दिया, फिर वहां पे कोई आया, उसने लेटर को उठाया और फिर उसको वो कहाँ लेके आया? पोस्ट ऑफिस में लेके आया. द लेटर इज डिलीवर्ड टू ए कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस. तो यहाँ पे कोई उसको लेके आया एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे जो पोस्ट ऑफिस में आ गया, फिर वहां से इसके मेल बॉक्स में आ गया, फिर वो जो लेटर था वो जो आपका कोई भी फ्रेंड था या कोई भी दोस्त थी उसको आके देख दिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट लेयर हो रही है. हाई लेयर, मिडल लेयर, लोअर लेयर. सो द सेंडर शुड नॉट केयर अबाउट द लोअर लेयर. अब आप इसको लेटर भेज रहे हो तो आपको इसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि लेटर कैसे जा रहा है. आपको मतलब किससे होना चाहिए? आपको मतलब होना चाहिए मेरा लेटर इसके पास सही से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा. सो यू आर नॉट bothered about the lower layer or middle layer. You only bothered that whatever the data you are sending, it should reach at the destination. Okay. For this we are having the OSI model. इसके लिए हमारे पास अब क्या चीज आई सर? इसके लिए हमारे पास में OSI मॉडल आया. ओके. OSI मॉडल आया अपने पास में. ठीक है सर, ये क्या चीज है OSI मॉडल? तो इट इज बिन एस्टेब्लिश यू कैन से इन 1947. 1947 में, और आज आप देखो कितने साल हो गए. सो आज भी हम इस चीज को देख रहे हैं. सो whatever the model is being introduced, it was introduced by seeing the you can say outcome in the future also. फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसको. तो द फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाज इन लेट 1970 में इसको अप्लाई किया हमने. ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ठीक है. सो ओएसआई इज द ऑर्गेनाइजेशन. आईएसओ सॉरी, आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है और ओएसआई एक आपका मॉडल है. सबसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट यही है. और whoever understand the OSI model, he understand the complete networking. तो जिसने OSI मॉडल समझ लिया, he can understand the complete networking. Okay, so in our OSI model we are having the 7 layers. So whatever the notebook, whatever the copy you are having, you need to remember the name. अब ये जो सबसे नीचे है, the lowest layer is known as bottom layer, जिसको कहते हैं layer 1, and the topest layer is known as application layer. This is layer 7. So examiner पूछ सकता है which is the layer 4, which is the top layer, which is the bottom layer. So you have to remember the name. अभी याद नहीं होंगे, but the more revision you will do, the more you are going to see this image, the more understanding you are going to get. So remembering the name is very very important, very very crucial from exam point of view. Moving ahead, now see how the data is being transmitted. So just we are seeing the overview here. This is only introduction class. So let's suppose there is a device A and there is a device B. You want to send a message hi to this device. Okay, so you and your friend, you want to just send a message hi to this device. Okay, इसके आगे क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं. Whatever is happening, so you have no idea about it and you don't want to know. So you just want to send a message to this device and you want to say hi, how are you? This is the message that you want to send. Okay, that's it. Now how the data is been communicated. अब यहाँ से आपका आएगा पैकेट, इस राउटर पे आएगा, इस राउटर से दूसरे राउटर पे आएगा, फिर कोई और राउटर. देयर आर सो मेनी राउटर्स. सो लेट्स सपोज यू आर सिटिंग इन इंडिया and your friend is sitting in USA. Your friend is sitting in USA. Now you just want to send hi, how are you? The data is being traveled in between so many different routers, so many different you can say network. In the end, it is going to be received here. Then you are going to receive an acknowledgement also. So how the data is being transmitted? So we are going to understand with the concept of OSI layer. अब यहाँ पे एप्लीकेशन को याद करना पड़ेगा लेयर्स को. सबसे पहले इन द बॉटम वी आर हैविंग द फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर मींस व्हाट यू सी, क्या आप देखते हो उसको एप्लीकेशन लेयर हम बोल सकते हैं. जैसे आपका यूआई हो गया, जो आप देख रहे हो यूआई, यूजर इंटरफेस, दिस योर एप्लीकेशन लेयर. जैसे आप एप्लीकेशन देख रहे हो, कोई फोन में एंड्रॉइड में एप्लीकेशन है, कोई आप गेम खेल रहे हो, इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन आप देख रहे हो, whatever you are seeing in a UI part, user interface. This is what you see, and you don't know and you don't want to know about this layer because it is not relevant to you for a general public. But now you are studying here to clear the exam, so now you have to remember what is the working of every layer. तो अब देखो यहाँ पे आपका डेटा आता है ऊपर से, तो ऊपर से यहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? टू द प्रेजेंटेशन लेयर. उसके बाद यहाँ से डेटा किसके पास जाएगा? सेशन लेयर.
इसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। यहाँ पे आपका डेटा आएगा, फिर फिजिकल लेयर से यहाँ पे आपका जाएगा। फिर ये जो राउटर है, राउटर को हम क्या कहते हैं, लेयर 3 डिवाइस। राउटर देखो, राउटर आपका दिखता है कैसा। आई विल शो यू हियर राउटर, हाउ द राउटर्स लुक लाइक। राउटर डिवाइस, दिस इज हाउ योर राउटर्स लुक। सो राउटर आपका ऐसा दिखता है सर। अब ये क्या होता है, ये लेयर 3 डिवाइस होता है, इसको कहते हैं लेयर 3 डिवाइस। लेयर 3 डिवाइस, इसका मतलब क्या है, ये जो जो आपकी जो थर्ड लेयर है, इस पे ये वर्क करता है। जो राउटर है, ये आपकी जो लेयर है 3, उस पर वर्क करता है राउटर। तो राउटर वर्क ऑन लेयर 3। व्हाट इज द लेयर 3? वी हैव सीन द लेयर 1 इज फिजिकल लेयर, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर 3 नेटवर्क लेयर। इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ओनली इंट्रोडक्शन। सो राउटर यहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ तक आपकी तीनों लेयर यूज होगी, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। जहां पे आपका डेस्टिनेशन होगा, वहां नेटवर्क लेयर से फिर डेटा आपका ऊपर जाएगा। दिस इज हाउ योर डेटा इज गोइंग टू ट्रांसमिट। तो यहाँ से पहले नीचे जाएगा, एट द डेस्टिनेशन बॉटम टू टॉप, ऐसा आपका डेटा जाएगा। ओनली फ्लो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन। ठीक है। अब when the data is being transmitted from one place to another place, from top to bottom headers are added। header क्या होते हैं, added होते हैं। बस आपको यही लाइन लिखनी है, when the data is being transmitted from top layer to bottom layer, the data is being transmitted and the headers are added। every layer is being going to add some header। in that हमारा क्या होता है सर, हमें पता है कि डेटा 010101 फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। so in the data link layer you are having the data in the form of 0101010101, and the data is being transmitted, maybe some LAN cable is there, उससे आपका डेटा अब क्या हो रहा है, डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है। फिर यहाँ पे आपका डेटा मिल गया, सो डेटा इज रिसीव्ड एट द destination। now what is going to happen, the headers are removed, the header which are added, now one by one all headers are being removed, and at the end whatever the data you want to send, it is being received at this destination। he don't want to know what are the headers he had added, he just want to know what is the data that you have sent। आपने जो डेटा भेजा था D7, सिर्फ इसको इस D7 से ही मतलब है, बाद में जो जो हेडर ऐड किए इसको कोई मतलब नहीं है। सो जैसे यहाँ आ जाएगा तो एक एक करके आपके जो हेडर्स है वो भी रिमूव होते जाएंगे। ठीक है, फिर आपको आखिरी में डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब अपना जो OSI लेयर होते हैं इसमें ये 7 लेयर हैं, ये याद करनी पड़ेंगे आपको, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अब आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, द लोएस्ट लेयर और द बॉटम लेयर। इन दिस लेयर वी आर हैविंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ 01010101 लाइक दिस। ओके, so the physical layer is responsible for the movement of hope to the next individual bit from one hope to next। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है डैश लेयर, इसको ये क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। एग्जामिनर विल रिमूव दिस एंड इट विल एड ए ब्लैंक हियर, जिसको हटा देगा। फिर वो पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज द रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट। नाउ यू नीड टू फिल, ही विल गिव 4 ऑप्शन, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर। सो लाइक दिस ही कैन आस्क द इजी पीजी क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई कोई डाउट है यहाँ पे? एनीवन हैज डाउट सम? ओके, सर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी? यस यस, आई विल शेयर द पीडीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, हमने शुरू में देखा कौन सी लेयर देखी, फिजिकल लिंक देखी। अब हम देखेंगे डेटा लिंक लेयर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेटा लिंक लेयर। नाउ इन डेटा लिंक लेयर लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स इज देयर। नाउ वी नीड टू ऐड सम डेटा। अब यहाँ पे क्या यूज होता है, फ्रेम यूज होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, फ्रेम इज बीइंग यूज्ड एट विच लेयर, फ्रेम किस लेयर पे काम करता है। जैसे मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाता हूँ। ऐसे एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। जैसे ये आ गया क्वेश्चन, विच लेयर इन OSI मॉडल provide the data transfer in the form of frames across the transmission। so this question asked in some examination of MP in 2017। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था डेटा लिंक। अब देखो ये आ गया क्वेश्चन, अब इसने पूछ लिया, इसका आंसर क्या, हमने अभी देखा था डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ऐसे कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज बीइंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी और का कुछ है यहाँ पे डाउट? ठीक है, सो मूविंग अहेड, एक सेकंड। होप टू होप डिलीवरी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, होप टू होप डिलीवरी कौन देखता है?
तो इट इज बीइंग चेक्ड एट द डेटा लिंक लेयर। हमारे यहाँ डेटा लिंक लेयर होता है, वहां पे हम होप टू होप डिलीवरी देखते हैं। वी चेक द होप टू होप डिलीवरी एट द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, यहाँ पे हम होप टू होप डिलीवरी देखते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपका जा रहा है। जैसे ये राउटर है, ये दूसरा आपका राउटर है, ये आपका स्विच है, तो यहाँ पे जो डेटा जा रहा है वो आपका होप टू होप डिलीवरी आपका हो गया। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग अवर नेटवर्क। ठीक है, तो ये क्या देखता है, ये देखता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ क्या यूज होती है, पैकेट्स। पैकेट्स इन मी यूज इन द डेटा लिंक लेयर। यहाँ क्या होता है, पैकेट्स। अब आपने सुना होगा कभी नाम, IPv4 का पैकेट आता है, IPv4 पैकेट फॉर्मेट। ठीक है, आपने कभी इसका नाम सुना होगा इन समवेयर। वी आर हैविंग द IPv4 पैकेट, दिस इज हाउ योर IPv4 पैकेट्स लुक लाइक। तो इट इज बीइंग चेक्ड एट दिस डेटा लिंक ले, यहाँ आई एम सॉरी नेटवर्क ले। नेटवर्क ले पे आपका क्या करते हैं, आईपी एड्रेस, तो IPv4 पैकेट। अभी हम यूज क्या करते हैं, अभी हम IPv6 यूज करते हैं, वी यूज IPv6। तो नाउ इट इज बीइंग हैविंग द डिफरेंट पैकेट साइज और डिफरेंट फॉर्मेट, बट इट इज आल्सो बीइंग यूज है, तो यहाँ पे भी आपका IPv6 यूज होता है पैकेट। ठीक है, तो ये भी आपका इसके अंदर आता है। नाउ मूविंग अहेड, जैसे आपका सोर्स हो गया डेस्टिनेशन। तो योर फ्रेंड, यू आर सिटिंग इन इंडिया, ओके, यू आर सिटिंग इन इंडिया एंड योर फ्रेंड इज सिटिंग इन यूएसए। नाउ दिस इज हु इज रिस्पॉन्सिबल कि भैया डेटा इंडिया से लेके यूएस तक आ जाए। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी योर डेटा फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, which layer? So your network layer is responsible to take your data from India to USA. So examiner can ask which layer is responsible for source to destination delivery of the data. So your network layer is responsible for source to destination delivery of your network. ठीक है, अब यहाँ पे जो होप टू होप है वो कौन देख रहा है, वो आपका डेटा लिंक दिख रहा है। डेटा लिंक लेयर देख रहा है होप टू होप, एंड सोर्स टू डेस्टिनेशन ये कौन देख रहा है, नेटवर्क लेयर। एग्जामिनर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस है, सो वी आर जस्ट गोइंग विद इन डिटेल, वी आर गोइंग टू स्टडी, डोंट वरी, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन क्लास। इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी दिस लेटर ऑन, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ वी आर हैविंग द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब यहाँ पे होता है क्या है, आपका एक और हेडर यूज हो जाता है H4 नेटवर्क लेयर। अब इसमें यूज क्या होता है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस आपके वर्क करती है। लेट सपोज आई एम हैविंग दिस माई प्रोसेस। अब यहाँ पे जितने भी प्रोसेस यूज हो रहे हैं, देयर आर सो मेनी प्रोसेस इन बीइंग यूज्ड। अब किस प्रोसेस को डेटा देना है, किसको नहीं देना है, वो यूज होता है। लेट सपोज आई एम यूजिंग एच। अब एच के भी देखो कितने यहाँ पे सारे प्रोसेस यूज हो रहे हैं, एच के भी यहाँ पे प्रोसेस यूज हो रहे हैं। तो विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, बिकॉज इन योर पीसी देयर आर सो मेनी प्रोसेस, सो नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। इसमें दो चीजें और आती हैं, TCP एंड UDP, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन। ठीक है, now your session layer, it is responsible for dialog control and synchronization. Then we are having the presentation layer for our data translation, data compression, data encryption. आपने कभी data encryption सुना होगा कभी, maybe you have heard it somewhere, data encryption. So इसमें एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन, बट दिस इज द encryption। आपने सुना होगा कभी इसका नाम, डेटा encryption होता क्या है। मान लो कि जैसे ये है, द मैसेज दैट यू वांट टू सेंड इट इज हेलो। आपने किसी की से इसको इनक्रिप्ट किया एंड ये मैसेज कुछ हो गया साइफर टेक्स्ट। इन बिटवीन समवन वांट टू एक्सेस, ही इज नॉट एबल टू रीड, एंड फिर आपको की यूज होगी, उसे डेटा को डिक्रिप्ट करोगे। हेलो, जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, इसका नाम ले लेते हैं अपन, यहाँ पे ले लेते हैं राहुल सिंह ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम ले लिया राहुल, राहुल सिंह। दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू सेंड फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है मैं मैसेज भेजूंगा, बीच में कोई देख सकता है, इसको इनक्रिप्ट करके भेजना है। सो आई विल इनक्रिप्ट दिस मैसेज, ये मेरा बन गया मैसेज, इसको मैं भेज दूंगा। अब नाउ समवन हु इज गोइंग टू रीड दिस मैसेज, ही विल से ओके व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, विच शुड आई चेक और विच शुड आई फोकस। नाउ अब हम यहाँ पे डिक्रिप्ट करते हैं। अब वहां पे कोई भी कोई आएगा डिक्रिप्ट करने के लिए, अब इस मैसेज को डिक्रिप्ट करते हैं। ये मैसेज यहाँ पे लिखा हमने डिक्रिप्ट किया, इसको मैसेज को डिक्रिप्ट करो। अब इसको डिक्रिप्ट किया तो मुझे आउटपुट देगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा बहुत इसमें लग रहा है, टाइम लग रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ इशू आ गया है, तो नो प्रॉब्लम, वी विल चेक अनदर प्रॉब्लम प्रोग्राम हियर। अपन यहाँ पे एस एच वन देख लेते हैं ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल, click करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम बीइंग यूज है, जैसे ये वाली एल्गोरिथम आ गई। ठीक है,
अब यही डेटा को मैं यहाँ पे रख के मैं इसको डिक्रिप्ट में करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो डेटा था इसको जब हमने डिक्रिप्ट किया तो इसने आउटपुट मुझे अब क्या दिया, राहुल। तो डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस लेयर पे होता है? तो इट इज हैपन एट माय प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे होता क्या है, डेटा डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन। ठीक है, जैसे डेटा होता है कंप्रेशन, इसमें जैसे आपका जिप फाइल आती है, जिप फाइल वगैरह हो गया आपकी ना, मतलब डेटा को कंप्रेस करके भेजना। तो विच लेयर, योर दिस लेयर। ओके, मूविंग अहेड, एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर्स। जैसे आपके यूजर्स हो गए, टू अलाउ द एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्स एलोकेशन। द लेयर ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल डू नॉट एग्जैक्टली मैच विद ओएसएच टीसीपी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या आता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल भी एक आता है। ठीक है, अब टीसीपी आईपी लेयर में होता है कि 5 लेयर होती है, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। ओएसआई में कितने, 7, इसमें 5 लेयर। तो दिस इज इमेज ऑफ टीसीपी आईपी। नाउ इन अवर एड्रेसिंग वी आर गोइंग टू चेक फिजिकल लेयर, लॉजिकल, पोर्ट एड्रेस एंड स्पेसिफिक एड्रेस। जैसे कि एड्रेस आपके कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल एड्रेस। एनीवन हु वांट टू टेल व्हाट इज फिजिकल एड्रेस का क्या मतलब होता है, फिजिकल एड्रेस का, एनीवन वांट टू स्पीक व्हाट इज फिजिकल एड्रेस? यस, एनीवन? ओके, सो यू हैव नो आइडिया व्हाट इज द फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस इज योर मैक एड्रेस, जो आपका मैक एड्रेस है उसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं। फिर लॉजिकल एड्रेस, द आईपी विच इज गोइंग टू असाइन टू यू, जो आईपी एड्रेस मिली है उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डेप्थ में अपन इन चीजों को देखेंगे, यू डोंट हैव टू वरी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। ओके, मूविंग अहेड, नाउ वी आर हैविंग द रिलेशनशिप। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखती हैं। जैसे ही जो फिजिकल एड्रेस है ये कौन देखेगा आपका, सर फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, इनको मतलब होता है। नेटवर्क लेयर को क्या मतलब होता है, लॉजिकल एड्रेस है, आपकी आईपी एड्रेस क्या है। फिर होता है योर ट्रांसपोर्ट लेयर, इट इज रिलेटेड विद योर पोर्ट, किस पोर्ट पे कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है, इससे और कोई मतलब नहीं है। प्रोसेस को मतलब होता है स्पेसिफिक एड्रेस, किस स्पेसिफिक एड्रेस पे प्रोसेस चल रहा है। सो एवरी लेयर इज हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर गोइंग टू चेक दैट ओनली। ठीक है, जैसे कि ये है मेरा फिजिकल एड्रेस। सो एनीवन हु वांट टू नो, हु वांट टू स्पीक हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन योर फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में कितनी बिट होती है इन योर मैक एड्रेस? मैक एड्रेस को ही फिजिकल एड्रेस कहते हैं। एनीवन हु नो हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 48 48 बिट, यस गुड, 48 बिट। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं, जैसे आपका एग्जाम हो गया बैंक पीओ का, बैंक क्लर्क हो गया, जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस आता है, वेयर द कंप्यूटर अवेयरनेस इज आस्क्ड, वहां पे ये चीज आ सकती है। इसी को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं, 12 हेक्साडेसिमल यूज होते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू कन्वर्ट द बिट इनटू बाइट, बाइट टू योर कैसे केबी एमबी, कैसे किसी नंबर को ऑक्टेल में चेंज करते हैं, हेक्साडेसिमल, ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। सो दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन क्लास। Okay, so let's suppose there is a you want to send a data to another receiver, so you will only know the physical address। तो यहाँ पे जब आप फिजिकल एड्रेस लिखोगे तो आपका जो स्विच होता है वो फिजिकल एड्रेस पे वर्क करता है। देखो स्विच और आउटर होता है। एग्जाम में होता है क्या, कभी कभी स्विच या इंटरव्यू के अंदर भी कभी स्विच और राउटर से डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ओके, स्विच ये क्या करता है, डेटा स्विचिंग के काम में आता है, ये डेटा राउटिंग में इसमें एल्गोरिथम यूज होती है। ये लेयर 2 डिवाइस है, ये लेयर 3 डिवाइस है। ये किस पे वर्क करता है, मैक एड्रेस पे। स्विच know about only MAC address. It deals with only MAC address. Routing is deal with IP address. IP address को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस। IP address known as लॉजिकल एड्रेस। ओके, मूविंग अहेड, तो सेम चीज है यहाँ पे। फिजिकल एड्रेस विल चेंज फ्रॉम होप टू होप बट द लॉजिकल एड्रेस विल रिमेन सेम। इफ यू आर डूइंग विद राउटरिंग, राउटर यूज हो रहा है नेटवर्क लेयर 3, तो वहां पे क्या होता है, आईपी एड्रेस सेम रहता है, बट एक जगह से दूसरी जगह आपका जो मैक एड्रेस कैन चेंज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, बट योर लॉजिकल एड्रेस इट इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, 16 बिट में रिप्रेजेंट किया है। अब हम क्यों, हम ओएसआई इतना सब हम क्यों सीख रहे हैं सर, इतने लेट्स प्रोटोकॉल क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, तो देखो प्रोटोकॉल्स लगाने का क्या मतलब होता है। देखो आप इंडिया के अंदर हो, ठीक है, इंडिया में आपने कह दिया सर 1 लीटर इज इक्वल टू कितना एमएल होना चाहिए, आपने बोला 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। दिस इज स्टैंडर्ड इन इंडिया। अब यही स्टैंडर्ड आप यूएसए में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, आप इस दुनिया के कहीं भी कोने में जाओगे, ये स्टैंडर्ड सेम रहेंगे। आपको पता है 2 + 2 4 होता है, कहीं पे भी जाओगे सेम रहेंगे। तो देर आर द सम स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव बिल्ड, हमने कोई स्टैंडर्ड्स बिल्ड किए हैं
अब उस स्टैंडर्ड पे सबको काम करना पड़ेगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ISO ऑर्गेनाइजेशन, इसने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए। इसने अब क्या किए, स्टैंडर्ड्स फिक्स किए कि यार ये स्टैंडर्ड्स रहेंगे, और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर गोइंग टू बी सेम सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर, हम एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स को हम लेके आए थे। अब जो नेटवर्किंग का मेन गोल क्या होता है सर, डेटा कम्युनिकेशन हो जाए, आप फास्ट एंड यू कैन communicate with each other very quickly like email and video conference, so whatever I'm saying you can hear at the same time. So this is how it is the possible. It is possible when we stick together toward the same protocol, same set of rules, and we build the things. In the end we are able to achieve whatever is our task, and we want to save money, हम रुपए भी बचाना चाहते हैं। अब कौन सी लेयर कौन सा एप्लीकेशन होता है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एप्लीकेशन लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एप्लीकेशन इज लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईमेल, फॉर चैट, फॉर वेबसाइट, फॉर शेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, फॉर एक्सेसिंग द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, मोबाइल वर्कर, दिस इज द एप्लीकेशन लेयर। नाउ नेटवर्क स्ट्रक्चर। सो अब अपना जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें आता है अपना सबनेट आता है, और अपना होस्ट आता है। होस्ट आपका हो गया यू, वॉट एवर मिस मशीन यू आर यूजिंग, लेट सपोज यू आर यूजिंग HP लैपटॉप, आप क्या कर रहे हो, HP का लैपटॉप यूज कर रहे हो, ये क्या है आपका होस्ट है। आप फोन यूज कर रहे हो, आप एप्पल का मोबाइल यूज कर रहे हो, एप्पल 11 का मोबाइल आप यूज कर रहे हो। अभी तो जैसे iPhone 16 या 17 आ गया मार्केट में, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, सो द मोबाइल दैट यू आर यूजिंग इट इज अ होस्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन। ठीक है, हम लेटर ऑन इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स जिसको हम कंबाइन करके स्टडी करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, अब आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में हम कौन सी चीजें देखते हैं? फिजिकल लेयर अवर मेन फोकस ऑन 0 and 1, हम 0 और 1 के ऊपर ही फोकस करते हैं। ठीक है, अब जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो नई चीज आई है अभी, तो मतलब स्टडी एनीवन हु वांट हु हैव डन अ बीटेक प्रोजेक्ट इन क्वांटम कंप्यूटिंग, किसी ने कोई बीटेक प्रोजेक्ट बनाया था अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग, और हु नो अबाउट द क्वांटम कंप्यूटिंग, एनीवन? ओके, सो जस्ट स्टडी द क्वांटम कंप्यूटिंग, इट इज द फ्यूचर। ठीक है, तो वहां पे होता है क्या, 0 1 और 0 1 एक साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें मेनली हम क्या देखते हैं, डेटा कैसे आपका ट्रांसमिट हो रहा है, कैसा ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, वायर्ड मीडियम है, वायरलेस मीडियम है, लैन है, क्या कौन सी केबल यूज कर रहे हो, रिपीटर्स, हब वगैरह इसमें यूज होते हैं। इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी, सेपरेट लेक्चर विल बी देयर फॉर द फिजिकल लेयर। ओके, नाउ वी आर इन द डेटा लिंक लेयर। इसका मेन रोल क्या रहता है, फॉर द एरर कंट्रोल एंड फॉर द फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल। And the main topics we are going to study in this layer, we are going to study about the framing, we are going to study about the error detection and how we can correct the error. अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने डेटा सेंड किया हो, राहुल, मान लो आपने राहुल किया हो सेंड, और फिर वो जो डेटा है वो राहुल एल की जगह मान लो ए चेंज हो गया हो, सो इट कैन हैपन, सो हाउ वी कैन डिटेक्ट एंड हाउ वी कैन करेक्ट, so both we are going to study later on. ठीक है, फिर नेटवर्क लेयर, इन दैट वी डील्स विद द राउटिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, हम राउटिंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट और इंटरनेट के अलग अलग होते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, वी आर गोइंग टू स्टडी, यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, जैसे ये आपके हो गए राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन डिटेल। ठीक है, तो आपका जो IGP है उसमें हम देखेंगे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट क्या है, आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, ARGB क्या है, BGP क्या है, तो कौन सी एल्गोरिथम है, किसका क्या मतलब है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन कि भैया ये सिलेबस के अंदर है। देन वी आर हैविंग द ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू कैन से, प्रोसेस टू प्रोसेस, एंड इट इज द हार्ट ऑफ OSI। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट विच इज द हार्ट ऑफ OSI मॉडल। लेट्स सपोज आई विल शो यू हियर हार्ट ऑफ OSI मॉडल। मान लो ये आपका आ गया क्वेश्चन, आ गया, तो मान लो कि जैसे ये आ गया क्वेश्चन, कोई उठा लेते हैं क्वेश्चन, मान लो ये है OSI मॉडल, यहाँ पे देखो हार्ट ऑफ OSI लिखा है। अब हो सकता है कि MCQ के अंदर आ जाए, विच लेयर इज द हार्ट ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, आपको विच लेयर यू आर गोइंग टू टिक, यू आर गोइंग टू टिक द नेटवर्क, आई एम सॉरी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे टिक करना है, व्हाई, इट इज नोन एज द हार्ट ऑफ OSI मॉडल। ओके, इन दैट वी आर हैविंग द TCP UDP। सर TCP क्या, UDP क्या, इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी। जस्ट एक बार अभी सिर्फ देख रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस में चीजें आती हैं। देन वी आर हैविंग द सेशन लेयर। सो इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डेटा सिंक्रोनाइजेशन का। देन वी आर हैविंग द प्रेजेंटेशन, इसके 3 लेयर होते हैं, डेटा इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, यहाँ नहीं लिखा इन्होंने,
डेटा कंप्रेशन एंड डेटा इंक्रिप्शन। सबसे ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा इंक्रिप्शन। ओके, देन वी आर हैविंग द एप्लीकेशन लेयर। इसके बाद क्या है? अपना एप्लीकेशन लेयर आता है। इसमें अपने पास FTP, HTTP, SMTP, ये जितनी चीजें हैं ये अपने पास में आती है। फिर इसमें कुछ कुछ वर्ड्स यूज होने वाले हैं दैट हम देखेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, एनालॉग क्या है, इसमें जो जो केबल यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर, ब्रॉडबैंड, कोएक्सियल केबल, ये सब चीजें क्या हम देखेंगे। व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह ये देखेंगे। अपने जो गाइडेड अनगाइडेड मीडिया है, उस जैसे रेडियो है, ये अनगाइडेड मीडियम के अंदर आता है। ये सब मॉड्यूलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेशन क्या है, ये चीज हम देखने वाले हैं। मॉडर्न क्या है, एनकोडिंग में हम मैनचेस्टर एल्गोरिथम यूज करते हैं, ये कैसे काम करती है, इसका क्वेश्चन आ गया, हाउ गोइंग वी हैव टू सॉल्व, व्हाट इज द डिफरेंशियल मैनचेस्टर एल्गोरिथम, वी आर गोइंग टू सी। व्हाट इज द रिपीटर, पीपीटी का यूज क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ हब, हब को हम, इसके हब के अंदर भी आता है एक्टिव हब और पैसिव हब, बोथ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। ओके, फिर आपने जैसे जो नेटवर्क लेयर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें, एल्गोरिथम्स हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड हाउ वी कैन डू द कंजक्शन कंट्रोल, राउटिंग्स कैसे काम करते हैं, सब देखने वाले हैं। ठीक है, फ्लडिंग हो गया, डेटा का फॉर्मेट, कैसे हम आईपी एड्रेस से अपने नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेटवर्क आईडी, हाउ वी कैन फाइंड इट, ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आईपी एड्रेस। मास्क क्या है, नेटवर्क एड्रेस क्या है, हाउ वी कैन फाइंड द एड्रेस, हाउ वी कैन असाइन द आईपी एड्रेस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी। क्लास ए क्या है, क्लास बी क्या है, नाउटिंग, सबनेट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। सो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ योर नेटवर्किंग एंड द नोट्स हैव बीन रिफर्ड फ्रॉम द du.ac, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं हम उसको रिफर करने वाले हैं फॉर आवर स्टडी पर्पस। सो योर क्लास 1 इज ओवर, इंट्रोडक्शन क्लास। इसका कोई डाउट होता है, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क ए क्वेश्चन।